Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next lecture of your chapter number 17, that is Merchant of Venice. As you know that in the last lecture we have finished out with the some part of the reading section, and today we are going to continue with the remaining part of the reading section. So I would like that you all should open your page number 101 where we have left with the reading. I hope that you all have opened that. So let's begin up with the reading. Take my life as well. मेरी भी life ले लो. He cried bitterly. उसने बहुत bitterly कहा. You take my life away. If you take means by which live. The young lawyer turned to Antonio and said, young lawyer Antonio की तरफ turn होता है और कहता है, What mercy can you offer him, Antonio? क्या mercy होगी जो तुम उसे offer करोगे, Antonio? And the kind-hearted Antonio, pitying the broken old man, and said gently, Let him keep my share of the property. कि मेरे जो share है मेरी property की उसे रखे रहने दो. But on one condition, एक condition में, when he dies, जब वो मर जाएगा, he must leave all the possession of his daughter Jessica and her husband. पर वो यहाँ पे ये कहता है कि जितनी भी जब वो मर जाएगा तो जितनी भी जो possession है, जो भी उसके पास चीज़ें हैं, वो किसको छोड़ दे, किसके लिए छोड़ देगा, अपनी daughter और उसके husband के लिए. Are you contented, Sherlock? Why do you say? asked the lawyer. Lawyer ने यहाँ पे पूछा. I am contented, said the lawyer. Said the Sherlock. Sherlock ने कहा. And now I pray you, मैं तुम्हारे लिए pray करता हूँ. Give me leave to go, कि मेरे को please छोड़ दो. I am not well, मैं सही नहीं हूँ, मैं well नहीं हूँ. Send me the paper and I will sign them. The old Jew left the court. And Tino and Bassino were fully gratitude to the clever young full of gratitude to the clever young lawyer and asked him to accept the money that Sherlock has lent Bassino. अब यहाँ पे वो दोनों ही ग्रेटफुल होते हैं किसके, क्लेवर लॉयर के, और यहाँ पे उनसे कहते हैं कि जो भी मनी शेरलॉक ने दिया है वो उसे दे दे. But the lawyer would not take it, saying he was well paid by the content. Then, dear sir, said the Bassino ने कहा, take some gift from the remaining of your gratitude. If you insist, अब यहाँ पे वो कहते हैं अगर तुम मुझे insist कर रहे हो, said the young man कहता है, I will take the ring you wear on your finger. मैं तुम्हारी ring ले लूँगा जो तुमने अपने finger में पहनी हुई है. Bassino harshly drew back his hand, bring the ring, because the ring was one of that Portia had given him. क्योंकि वो ring वो थी जो पोर्शिया ने उसे दी थी. And he had promised herself that he would keep it always. He told the lawyer that the ring was of a small value and promised he would buy him a more expensive one instead. अब यहाँ पे वो बताता है कि जो रिंग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि आपको अच्छी वैल्यू की रिंग ला के देगा. But the young man seems annoyed. He taught how to beg. पर यहाँ पे वो बताता है, वो कहता है कि तुम्हें टॉट करा गया है कि कैसे बैग होती है. एंड नाउ आई थिंक यू टीच हाउ अ बेगर शुड बी आंसर. और अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि बेगर कैसे आंसर देता है. ही सेड गुड बाय कोल्डली टू बेसिनो एंड वेंट अवे. When he had gone, जब वो चला गया, however, Antonio persuaded Bassino to let the lawyer have the ring. यहाँ पे एंटोनियो ने persuade करा बेसिनो से कि हाँ तुम लॉयर को वो रिंग दे दो. And Bassino, regretting his earlier refusal, said the Gratino to find the young lawyer and gave to him. Poor Gratino found himself in trouble too. Poor Gratino भी उसे भी लगा कि वो एक trouble में है, because after giving Bassino ring to the lawyer, he was persuaded by the lawyer clerk to give him his own ring, a gift to him from Nursia at their marriage. Bassino and Gratino refused return to Bellbottom. अब Bassino और Gratino कहाँ पहुँच गए, Belmont पहुँच गए. Taking Antonio with them, किसको लेके, एंटोनियो को अपने साथ लेके. They were full. अब आप नेक्स्ट पेज पढ़ लिए.
They were full of happiness in their thoughts seeing Portia and Narcia again. वो बहुत happy थे दोनों को देखते हुए, but they were little worried. वो दोनों worried भी थे. What would their wives say them when they noticed the ring has gone? क्या होगा अगर उनकी वाइफ ने नोटिस कर लिया कि जो रिंग्स हैं वो चली गई हैं. When Portia looked Basino hand, she asked him at once what happened to the ring. He explained. उसने वहाँ पे बताया, उसने जो भी कंडीशंस थी सारी उसे बताई. But she seems very annoyed. पर वो थोड़ी annoyed लगी उसे. He begged her to forgive him. He begged her to forgive him. उसने उससे beg करी कि वो उसे माफ़ कर दे. And Antonio told her that Basino was not to blame. He had given the ring to the clever lawyer who have saved the Antonio life. I dare swear he will never again break a promise to you. Said Antonio. अब यहाँ पे Antonio कहता है कि मैं तुमसे स्वेर करता हूँ, कहता हूँ कि वो आज के बाद कोई भी ऐसी प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा. Then gave him this ring. Said पोर्शिया. अब वहाँ पे पोर्शिया कहती है तो तुम उन्हें ये रिंग दे दो. And tell him to keep it better than other. The Basino astonished and she gave him the very same ring that he had given to the lawyer. जहाँ पे जो बेसिनो है वो बहुत शॉक हो जाता है. और क्यों? क्योंकि जो पोर्शिया थी, पोर्शिया ने वही रिंग दी थी उसे जो उसने लॉयर को दी थी. She gave him the very same ring that he had given to the lawyer and Narcia returned the Ganco the Gratinio the ring which he had given to the lawyer clerk. You are all amazed, said the Portia, laughing the puzzled face. Portia एक puzzle face करते हुए laugh करती है, कहती है you all are amazed, तुम बहुत चौंके हुए हो. But here is a letter, read it. पर तुम्हारे लिए एक letter है, उसे read करो. All of you, तुम सबके लिए. There you will find the Portia was the lawyer and Narcia was his clerk. अब यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि जो पोर्शिया है वो लॉयर थी और नर्सिया जो थी वो क्लर्क थी. Were you the lawyers? I do not know you. Basino asked in amazement. अब Basino बहुत amazement में पूछता है क्या तुम दोनों lawyers हो? मुझे तो पता ही नहीं था. Yes, Portia said. Portia कहती है yes. Lorenzo will tell you and that I have only just returned from Venice. She turned to Antonio. Antonio, you are welcome. She said. Antonio को welcome करती है. I have better news for you than you accept. मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी न्यूज़ है जो तुमने एक्सेप्ट करी थी, एक्सपेक्ट करी थी. The 3 of your ships has arrived safely back to harbor. तुम्हारी जो तीनों शिप्स हैं वो हार्बर में फिर से वापस आ गई हैं. And your money is safe. और तुम्हारा जो पैसा है वो भी सेफ है. So there was a great rejoicing at the house. अब यहाँ पे सब लोग खुश थे. एक अच्छी great rejoicing थी हाउस में. At the Belmont में. And all was well for Antonio the brave merchant of Venice. और सब कुछ सही था, सब कुछ वेल था जो bravest merchant था वेनिस का. ओके तो यहाँ पे क्लास आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो फिनिश होता है. आप देख सकते हैं जो आपके ऑथर हैं वो कौन है? विलियम शेक्सपियर. सो क्लास अब हमारे यहाँ पे रीडिंग सेक्शन खत्म हुआ. अब हम आपका स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज पोर्शन. डिफिकल्ट वर्ड आपके लिए होमवर्क रहेंगे, वो आप खुद से रीड आउट करेंगे. आपका फर्स्ट हम करेंगे बी पार्ट, दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. ओके सो आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड ओपन योर बुक वेयर द फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन गिवन अप टू यू. योर फर्स्ट फिल अप इज long time ago there lived a merchant named dash in Venice. कौन सा मर्चेंट था जो वेन्स में रहता था? तो उसका नाम है, आप इसमें फर्स्ट फिलअप में आएगा एंटोनियो. नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द वेन्स देयर लिव्ड इन ज्यू नेम्ड डैश हु वाज अ मनी लेंडर. कौन सा ऐसा ज्यू था जो मनी लेंडर था? तो सेकंड में आएगा आपका शर्लॉक. ओके थर्ड फिलअप है डैश हैड नो फेथ इन शर्लॉक. किसमें ट्रस्ट, किसको ट्रस्ट नहीं था शर्लॉक में? तो थर्ड आपका आएगा बिसानियो. फोर्थ है आपका
Now 3 months passed and Antonio dash didn't return. क्या चीज थी एंटोनियो की जो रिटर्न नहीं हुई थी? तो फोर्थ में आएगा शिप. ओके, नेक्स्ट है आपका बसीनो terribly disturbed by dash and decided that he must return at once to Venice, try to save his friend. ओके, तो आपका यहाँ पे कौन था? तो आपका यहाँ पे किससे डिस्टर्ब था वो? न्यूज से. तो आपके फिफ्थ में आएगा न्यूज. सिक्स्थ आपको दे रखा है एंटोनियो डिडंट आस्क फॉर. एंटोनियो ने किस चीज के लिए नहीं पूछा था? मर्सी के लिए. किसके लिए नहीं पूछा था? मर्सी के लिए. नेक्स्ट आपका लास्ट दे रखा है अ विजडम हैज सून शोन बाय केयरफुल क्वेश्चन ही आस्क्ड द डैश. तो किससे पूछा गया था विजडम के तौर पे केयरफुल क्वेश्चन? तो सेवेंथ में आएगा जीव. क्या आएगा? जीव. तो यहाँ पे जो आपके फिलअप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्ड पावर. वर्ड पावर की फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स. आपको स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है, वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आप खुद से करेंगे. आपको जो वर्ड्स हैं वो आपको अपनी बुक्स में आपके चैप्टर में मिल जाएंगे. सेकेंड आपको दे रखा है मैच द नेम्स विद देयर कैरेक्टर. हमें आपको कैरेक्टर दे रखे हैं, कैरेक्टर से आपके जो नेम्स हैं उन्हें मैच करना है. ओके, फर्स्ट क्या है? एंटोनियो. एंटोनियो किसका था? एंटोनियो को आप मैच करोगे मर्चेंट ऑफ वेनिस से. सेकेंड दे रखा है बेसेनियो. बेसेनियो को आप किससे मैच करोगे? फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड हस्बैंड ऑफ पोर्शिया. थर्ड आपको दे रखा है शेलॉक. शेलॉक को आप किससे मैच करोगे? अ रिच जीव एंड अ मनी लेंडर. नेक्स्ट आपको दे रखा है लॉर्जेनो. लॉर्जेनो को आप किससे मैच करोगे? फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड अ लवर ऑफ जेसिका. नेक्स्ट आपको दे रखा है गार्टेनियो. गार्टेनियो को आप किससे मैच करोगे? फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसेनियो. नेक्स्ट आपको दे रखा है पोर्शिया. पोर्शिया को आप किससे मैच करोगे? अ रिच ब्यूटीफुल लेडी डिस्गाइज्ड एज अ मेल लॉयर. नेक्स्ट आपको दे रखा है नर्सिया. नर्सिया को आप किससे मैच करोगे? वेटिंग मेड ऑफ पोर्शिया. और लास्ट आपको दे रखा है जेसिका. जेसिका को आप किससे मैच करोगे? डॉटर ऑफ शेलॉक. किससे मैच करोगे? डॉटर ऑफ शेलॉक से. नेक्स्ट आपको दे रखा है बूस्ट योर ग्रामर. अब आप बूस्ट योर ग्रामर पे आइए. वहां पे क्या है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज? दैट इज योर ए पार्ट, यूज ऑफ हाउ. हमें किसका यूज करना है? हाउ का यूज करना है. Ask the question beginning with how. Underline the word are the core of the answer. आपको एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि a nightingale sings sweet but crow does not. तो आपको यहाँ पे दे रखा है how does a nightingale sing. इसी तरीके से आपको करने हैं. आपका फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है राहुल विल गो होम ऑन फुट. राहुल विल गो होम ऑन फुट. तो आपका ये आपका बूस्ट योर ग्रामर का ए एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट का आंसर होगा यहाँ पे आएगा हाउ विल राहुल गो होम. ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है एवरीवन लाफ हार्टली व्हेन आई टोल्ड देम अ फनी स्टोरी. तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका? हाउ डिड एवरीवन लाफ. थर्ड आपको दे रखा है वी कम टू स्कूल बाय बस. हम स्कूल किससे आते हैं? बस के द्वारा आते हैं. तो थर्ड का सेंटेंस कैसे बनेगा? ओके, यहाँ पे बनेगा हाउ डू यू कम टू स्कूल. ओके,
इसी तरीके से आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद से करना है एज इन योर होमवर्क, एज योर प्रैक्टिस सेक्शन। नेक्स्ट आपको दे रखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज टू ब्लैंक्स। हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड गिव इन द ब्रैकेट। हमें उनका एप्रोप्रिएट फॉर्म निकालना है जो हमें ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं। फर्स्ट है ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश। ब्रैकेट में आपको दे रखा है प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कौन सा पोर्शन है? बी पोर्शन है, जहाँ पे आपका जो फर्स्ट है उसमें क्या आएगा? ओके, तो यहाँ पे आपका सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट के फर्स्ट फिलअप में आएगा जज, सेकंड में आएगा जजमेंट। नाउ टर्न अप योर पेज, आप अपना पेज टर्न अप कीजिए। सेकेंड आपको दे रखा है द डैश सेड दिस ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक चांस हिज डैश। ओके, सो क्लास ये आपका सेकेंड फिलअप है। सेकेंड फिलअप का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जज आना है और सेकेंड में जजमेंट आना है। आपको फर्स्ट वाला करके दे रखा था। आप अपने थर्ड वाले पे आ जाइए। थर्ड में क्या है? आस्किंग फॉर डैश इज एन नोबल एज विलिंग टू डैश। तो आपको ब्रैकेट में दे रखा है फॉरगिव, तो यहाँ पे आपके फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा? आपके इसके थर्ड के फर्स्ट फिलअप में आएगा फॉरगिवनेस और सेकंड में आएगा फॉरगिव। नेक्स्ट आपको दे रखा है hermits are dash men how they acquire for their dash no one can tell। ब्रैकेट में आपको दे रखा है वाइज, तो आपके फोर्थ में कैसे आपके फोर्थ फिलअप आएंगे? वाइस और वाइजनेस। ओके, सो इसी तरीके से आपको फिफ्थ से लेके 8 तक खुद करना है इन योर होमवर्क एज इन योर प्रैक्टिस सेशन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ज्वाइनिंग द सेंटेंस। आपको यहाँ पे सीधे ज्वाइन करने हैं सेंटेंस। ट्राई टू ज्वाइन द पेयर ऑफ द सेंटेंस। हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो पेयर ऑफ सेंटेंस है उन्हें हमें ज्वाइन करना है। यूज द वर्ड एंड, बट, सो एंड बिफोर। आप इसमें वर्ड एंड, सो एंड बिफोर, बिकॉज का यूज भी कर सकते हैं। सी पोर्शन आपका होमवर्क रहेगा, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट फिट्स इट्स बेस्ट। हमें फिलअप करनी है। ओके, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे रखा है और ऊपर येलो पोर्शन में आपको वर्ड्स दे रखे हैं। आपको वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उनसे फिल आउट करना है। ओके, सो सी पोर्शन भी आपका पूरा होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से करेंगे। नाउ आई वुड लाइक दैट यू ऑल शुड कम अप ऑन योर क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ क्लास अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज एंटोनियो? एंटोनियो कौन था? तो हम इसमें लिखेंगे एंटोनियो वॉज अ रिच मर्चेंट। कौन था वो? आंसर 1, ही was a rich ओके, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है डिस्कस ब्रीफली। हमें उसके बारे में जो ब्रीफली डिस्कस करना है। ओके, हम इसको लिखेंगे, हम इसके आगे लिखेंगे
ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि वो अपनी जो शिप्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में भेजता था, किसके लिए, ट्रेड के लिए। नेक्स्ट आपको कह रखा है हु वॉज बेसिनो, बेसिनो कौन था, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, वह एंटोनियो का फ्रेंड था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है इसमें वाई डिड ही वॉन्टेड टू बोरो मनी फ्रॉम एंटोनियो, वो अपनी वो जो मनी था वो क्यों बोरो करना चाहता था एंटोनियो से, तो हम इसको आंसर लिखेंगे, दैट इज योर आंसर नंबर 2। ओके क्यों चाहता था, बिकॉज ही कुड विजिट पोर्शियो एंड फाइंड हिज लव, क्यों, क्योंकि वो पोर्शिया के पास जाना चाहता था और फाइंड करना चाहता था कि वो उसे प्यार करती है या नहीं। नेक्स्ट आपको दे रखा है हु वॉज शाइलॉक, शाइलॉक कौन था, एंड वाई वॉज ही एनॉक्शियस टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो, शाइलॉक्शियस कौन था और वो एंटोनियो से रिवेंज क्यों लेना चाहता था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आंसर 3 आप खुद करोगे। शर्लॉक वॉज अ ड्यू एंड ही वॉज, वो कौन था, वो एक जीव था और वो कौन था, मनी लेंडर था, वो मनी को लेंड करता था। ही वॉज एनॉक्शियस टू टेक द रिवेंज, वो रिवेंज लेने के लिए क्यों एनॉक्शियस था, बिकॉज मैनी टाइम्स एंटोनियो हैज इंसल्टेड हिम एंड स्पोक हिम रूडली, क्योंकि कई टाइम ऐसा होता था कि जो एंटोनियो था, एंटोनियो उससे बहुत रूडली बात करता था और उसकी कई टाइम इंसल्ट करता था। ओके तो आंसर नंबर 3 आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाई डिड शर्लॉक एग्री टू लेंड द मनी टू Bassanio on behalf of Antonio, what condition he put। ओके यहाँ पे हमें कंडीशन बतानी है क्या थी और उसने क्यों एग्री कर दिया था। ओके तो हम यहाँ पे आंसर नंबर क्या लिखेंगे, आपका आंसर नंबर 4।
ओके तो यहाँ पे आंसर आएगा ही एग्री बिकॉज ही थॉट हिज एनिमी वॉज गिवन हिम इन टू हिज हैंड. He put the condition that he will not charge anything, but he does not pay money if in 3 months he will cut off the flesh from his body. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why did Antonio sign the agreement inspired of बेसिनोस वार्निंग? बेसिनो वार्निंग के बाद भी एंटोनियो ने साइन क्यों कर दिए थे? तो हम इसका आंसर नंबर 5 लिखेंगे. ओके तो यहाँ पे आएगा ही सेड, उसने कर दिया था. ही डिड बिकॉज ही सेड दैट माई शिप विल रिटर्न इन अ मंथ बिफोर द मनी इज ड्यू, कि उसकी जो शिप है वो वापस आ जाएगी बिफोर द मंथ ऑफ ड्यू. ओके आपका 6th क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड बेसिनो गेट फ्रॉम द लेटर ऑफ एंटोनियो? आपको इसमें इंफॉर्मेशन बतानी है जो बेसिनो को लेटर से मिली थी एंटोनियो की तरफ से. तो उसमें वही था ना कि इसकी जो शिप है वो खो गई है और उसके जो पैसे हैं ही वॉज लॉस्ट विद ऑल हिज मनी. तो आप क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा वो आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज जजिंग द केस ऑफ एंटोनियो एंड शेलॉक? कौन था जो एंटोनियो और शेलॉक के केस को जज कर रहा था? तो हम इसमें आंसर नंबर 7 लिखेंगे. ओके तो यहाँ पे आएगा द ड्यूक ऑफ वेन्स वॉज जजिंग द केस. जो ड्यूक ऑफ वेन्स थे वो इस केस को जज कर रहे थे. आपका 8th क्वेश्चन है हाउ डिड द यंग लॉयर एक्सप्लेन द लैंग्वेज एग्रीमेंट? कि जो यंग लॉयर था उसने कैसे एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करा. एंड व्हाट वार्निंग डिड ही गिव टू हिम? कौन सी जो वार्निंग थी वो उसको दी गई थी. ओके तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको अपनी बुक्स में से मिल जाएगा क्या उसने एग्रीमेंट करा था और कैसे उसको एक्सप्लेन करा था. लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द यंग लॉयर टेल शेलॉक अबाउट द शेलॉक अबाउट द मर्सी? क्या चीज़ थी जो यंग लॉयर ने मर्सी के जो शेलॉक की मर्सी के बारे में बताई थी? तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से घर से करेंगे. सो क्लास आज हमने आपके लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज पोर्शन प्लस क्वेश्चन आंसर फिनिश करे हैं. सो क्लास आज हमने आपके लेक्चर में आपके एक्सरसाइज पोर्शन और आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश करे हैं. Whatever the portion we have given you in your homework, you have to do it by yourself. You can take the help of your parents as well as your teachers also. So here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.